हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 मैथ्स 11 साइंस एक्सरसाइज 10.2 पर थे। ओके, इन एक्सरसाइज 10.2 लास्ट सम इज सम नंबर just 1 minutes verify, yes, 13 completed. Okay, sum number 13 completed. Then today we are start with sum number 14. Okay, so continue with sum number 14. So what about sum number 14 and what is the new pattern and method about the sum number 14? तो find equation of the line. Okay, क्या दिया हुआ है? Find the equation of the line through the point 02. Understand easily and very well. Number 14, point P02, tick point, making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis. Okay, or already we have to require the positive x axis. If the angle make with y axis, so that also we have to take the angle with positive x axis, but already given data with positive x axis, so our angle alpha या थीटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट 2 पाई बाय 3. ओके, एंगल 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑल्सो फाइंड, दिस इज द गिवन डेटा. देन आफ्टर टेल देन ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट. ओके, मीनिंग समझे आप बेटा? इसका इक्वेशन पहले ढूंढो लाइन का, देन आफ्टर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन. ओके, इक्वेशन ऑफ इस लाइन की पैरेलल लाइन का टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस. एक और हिंट दी है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. ओके, दैट मीन्स in clear way, first of all we have to just find out the equation of the line with this is given data, and another find the equation of the line with another given data, but use and help of them equation. Okay, so that first we start of this given data. 0 to point alpha 2 pi by 3 is the angle, so that slope m is equal to tan theta या tan alpha, तो tan 2 pi by 3, that means tan 2 pi by 3. Okay, but in simple way we don't know the value of the 2 pi by 3, so that we convert 2 pi by 3 into tan pi minus pi by 3. yes or no? LCM 3 तो 3 pi minus pi, that means 2 pi by 3. बिल्कुल क्लियर. Pi according to the unit circle 0 pi by 2 pi, pi minus, that means second quadrant. In second quadrant 10 is minus. Pi है, that means x axis no function change, so 10 is equal to 10 and last 10 pi by 3. चलो 10 pi by 3, that means 60 degree. So what is the value of 60 degree? Root 3. Sin 60 degree root 3 by 2, cos 60 degree 1 by 2, 2 cancel, root 3 by 1, that means root 3. This is the slope. Okay, point ready, slope ready. Now equation of line. Equation of line, that means equation y minus y1 m bracket में x minus x1. Put the value of x1 y1. y1 is equal to 2 m, that means root 3, x minus x1 0, तो x, तो y minus 2 minus root 3x. चलो root 3x come this side. okay, तो positive, then after y is also positive, minus 2 is equal to 0, तो this is the equation for given data. okay, now we have to find out the another line of equation. This is not answer but the use of this equation. Another data is find the equation of the line parallel to it. okay, नई लाइन का जो इक्वेशन ढूंढना है, this is parallel to it. okay, if the condition, write down that if two line if two line क्या बोला है? parallel. If two line is parallel, then we know that the condition m1 is equal to m2. okay, so this is the slope m1.
तो m2 इज इक्वल टू ऑल्सो -√3, स्लोप बिल्कुल रेडी। ओके, नो टेंशन, डायरेक्टली वी टेक अ स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू m2, नो टेंशन, क्लियर। देन आफ्टर व्हाट अबाउट द पॉइंट, तो क्लू इज दैट then y axis at a distance of 2 unit below the origin, y axis 2 unit below the origin that means point q, okay, below, तो on y axis x 0 and below that means -2, below that means -2, तो 0 -2, clear, this is the point, this is the slope. Now equation of line, equation of line, y minus y1 m bracket में x minus x1, put the value y1 that means -2, तो minus minus +2, m again -√3, no change, x -0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, तो y+2 इज इक्वल टू -√3x, टेक ऑल ऑफ दिस वैल्यू दिस साइड लेफ्ट साइड, दैट मीन्स √3x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, 2 ऑल्सो पॉजिटिव, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ओके, फॉर द गिवन डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो √3x + y + 2 इज इक्वल टू आंसर। चलो नाउ नेक्स्ट सम नंबर 15, समथिंग चेंज इन एवरी सम, कुछ ना कुछ बेटा बदलता रहेगा, हर एक में कुछ ना कुछ नई मेथड हमको सीखने को मिलेंगी। इन 14, ओके, तो गिवन डेटा, लाइन का इक्वेशन क्लियर, और पैरेलल लाइन तो स्लोप सेम, पॉइंट का क्लू दिया था तो इक्वेशन मिल गया। नाउ टेक सम नंबर 15, the perpendicular from the origin, okay, we learn with this small of figure so that we clear about this sum. The perpendicular from the origin to a line meet it at a point -29, as like this is y axis, this x axis, ओरिजिन से एक लाइन निकल के दिस लाइन को परपेंडिकुलरली टच कर रही है, कौन से पॉइंट पे, तो पॉइंट इज गिवन -29, बट ओरिजिन दैट मीन्स 0 0, ओ दिस इज फिक्स बिकॉज दिस लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, इनिशिएटिव पॉइंट ओरिजिन है। देन परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन टू लाइन विथ -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, then means find the equation of the line, so we have to find the equation of the line L, equation of the line L, but clear that line L is perpendicular to OP and point P is on OP and line L both, point P is on OP and line L both, तो point P दोनों के ऊपर है, तो हमारे लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए we have one is point fix P, now another requirement is that another point, okay, या फिर तो स्लोप, दूसरा क्या चाहिए, स्लोप चाहिए या तो पॉइंट चाहिए, ओके, तो पॉसिबल रिक्वायरमेंट इज दैट मोस्ट ऑफ प्रोबेबली स्लोप इजीली अवेलेबल, ओके, हमको स्लोप मिलेगा बेटा, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो मिल नहीं पाएगा, बट स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ ओपी, दैट मीन्स y2 minus y1, x2 minus x1, पुट y2, x1 y1 x2 y2, 9 minus 0 तो 9, -2 0 तो -2, that means -9/2, this is the slope of AB, but line segment OP is perpendicular to the line L, so that slope of line L is reciprocal, that means 2/9 and sign change minus, तो वी टेक प्लस, ओके, पहले भी हमने ऐसा डिस्कशन किया था बेटा, परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल करके ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइन लेनी है, सॉरी, तो 9/2 दैट मीन्स रेसिप्रोकल 2/9,
and if sign is negative then we take positive. So 2/9 is a slope and point P minus 2 9, so that equation of line हमको हर एक सब में से बेटा क्लू ढूंढना है, कैसे हमको लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो हमने इस तरह से ढूंढ लिया, y माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1, तो y माइनस व्हाट इज y1, तो 2 9 है, दैट मीन्स 9 m दैट मीन्स 2/9 x माइनस माइनस प्लस 2, चलो 9 सामने जाएगा तो 9y माइनस 81, 2 अंदर जाएगा तो 2x प्लस 2 ज़ा 2 4, चलो सब कुछ या तो राइट हैंड साइड लेके जाओ या तो लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंड ऑन केस। चलो x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, देन ऑल ऑफ द वैल्यू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, सो दैट 2x इज फिक्स, प्लस 9y इन ऑपोजिट साइड माइनस 9y, माइनस 81 प्लस 4, तो all over total 85 is equal to 0. This is the equation. Understand? Okay, simple, okay, and easily understand. Number 16. What about number 16? थोड़ा वेरिएशन है। 16 and 17 both are almost same. For what value of 16 given the length of L in centimeter? किसी की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, कोपर रोड की लेंथ है, इन ए लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्सियस टेम्परेचर, रोड की लेंथ एंड सेल्सियस टेम्परेचर का कुछ रिलेशन है। एक एक्सपेरिमेंट किया एंड कंसीडरिंग टेक दैट L इज इक्वल टू 124.942 आफ्टर 0.3 डेसिमल आर गिवन व्हेन C इज इक्वल टू 20, अनदर if length L is equal to 125.134 when C is equal to 110. Okay, two experiment data is given, express L in term of C. Okay, L length in L is term of C, उस हिसाब से मतलब के लिखो। ओके, तो उसका मीनिंग क्या बैठता है बेटा, पहले तो हमें दो गिवन डेटा है, मैं लिखता हूँ आपको थोड़ा पता चले। तो पहले L है 124.942, तब है C हमारा 20, फिर L की वैल्यू चेंज, देन 125.134, देन C इज इक्वल टू 110, सेल्सियस में थोड़ा ज़्यादा चेंजेस है, 20 के बाद सीधा 110, एक्सप्रेस L इन द टर्म ऑफ C, मतलब कि CL के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ऐसी हिंट है। तो दो पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P पहले C लिखो, तो 20 के दौरान हमारी लेंथ 124.942 और Q तो 110 के दौरान 125.134, दिस इज द 2 पॉइंट। ओके, एंड अल्टीमेटली हमको उसके फॉर्म में मतलब कि क्या चाहिए, इक्वेशन, क्या चाहिए, इक्वेशन। ओके, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, L और C के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इफ 2 पॉइंट आर गिवन, क्या है, दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द 2 पॉइंट, जस्ट पुट इट, व्हाट इज द इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज फॉर 2 पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1, x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, बट given data is not in a form of xy, okay, E is a form of L and C, किस फॉर्म में है, L and C, तो we changes xy into LC form, that means the first point, okay, तो C1 L1, second point C2 L2, okay, तो put the value, convert the change x1 y1 in CL form, तो y2 that means L2 minus L1 upon y, that means L minus L1 is equal to x2 that means C1 C2 form, तो C2 minus C1 upon C minus C1, तो total equation convert into LC form। okay, now put the value of L2 L1 C1 C2, तो
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2? 125.134 माइनस L1 तो 124.942, नीचे L वो तो वेरिएबल है, L के फॉर्म में ही रहेगा। नाउ वैल्यू ऑफ L1 इज दैट, तो 124.942 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, तो C2 110 माइनस C2 20, ओके, डायरेक्टली 90, ओके, C माइनस C1, तो C माइनस C1 दैट मीन्स 20। क्लियर? नाउ अभी कुछ वैल्यू बेटा पॉइंट के फॉर्म में उसको जिस तरह से कन्वर्ट हो सकता है उतना मैक्सिमम करो। देन 125.134 माइनस 124.942, आंसर इज दैट 0.192 नीचे एज वेल एज 124.942 इज इक्वल टू 90 और C माइनस 20। ओके, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर जाएगा, दैट मीन्स C माइनस 20 90 एज वेल एज, ओके, डिवाइडेशन में 0.192 और L माइनस 124.942, ऑलमोस्ट दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने से बेटा नंबर ही बड़े होंगे और ज़्यादा कुछ वेरिएशन या चेंजेस मतलब के मिलने वाला है नहीं। इफ ज़्यादा से ज़्यादा किसी L या C को सब्जेक्ट बनाने हो देन उसकी वैल्यू को मतलब कि सामने शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये क्लियर। समझ गए? ओके, ये फाइनल आंसर। वंस अगेन गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, तो वी हैव टू वैल्यू, ओके, इन L एंड C फॉर्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंसीडरिंग एज अ C1L1, second point considering as a C2L2. Okay, if we have 2 point, now the equation of the line, okay, तो equation of line is y2 minus y1 divided by y minus y1 and x2 minus x1 divided by x minus x1. Then after we totally convert x1 and y1 xy in LC form. Okay, so then after put the value of L and C and we got a final equation of line. Same example with small changes. Okay, so number 17, given data is same thing, just start up. The owner of milk store find that, okay, owner of milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter, एट रुपीज 14 पर लीटर। एक जस्ट रिलेशन लिख देते हैं तो दैट मीन्स लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। 980 लीटर, सेम टाइम द रेट इज 14 पर लीटर। ओके, अनदर रिलेशन इज 1220 लीटर एट द सेम टाइम रेट इज 16 रुपीज पर लीटर। ओके, तो क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लीटर रिलेशन है। देन एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, ओके, लीनियर रिलेशन है। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। ओके, जब वो 17 रुपीज पर लीटर बेचेगा तब वो कितने लीटर बेच पाएगा। तो सबसे पहले हमें मतलब कि डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कि भी रेट को कौन से वेरिएबल में कंसीडर करना है, ओके, एंड डिमांड जो क्वांटिटी है उसको किस तरह से कंसीडर करना है। तो वी सपोज दैट रेट इज इक्वल टू एक्स, रेट इज इक्वल टू एक्स, ओके, एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू वाई। रेट एंड क्वांटिटी, ओके, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तो नाउ रिलेशन पॉइंट क्या बनेगा, इफ 14 रुपीज पर लीटर देन क्वांटिटी 980 लीटर्स।
Okay, same thing another point Q, if quantity rate is 16 rupees per liter, the quantity 1120, same thing. Okay, as well as example number 16. Okay, both are same. PQ 2 points are given so that we easily find out the equation of line. Okay, startup equation of line. Equation of line, same equation, y2 minus y1 upon x2 minus x1, sorry, y2 minus y1 upon y minus y1, y minus y1, then x2 minus x1 upon x minus x1. Put the value. What about y2? x1 y1 x2 y2, तो 1220 minus 980, नीचे y माइनस y1 तो 980, x2 तो 16 माइनस 14 दैट मीन्स 2, x माइनस x1 दैट मीन्स 14, 1220 माइनस 980, 1220 minus 980, answer is that 240. 240 divided by y minus 980 and 2 by x minus 140. That means 2 से कैंसिल होके 120. ओके, x माइनस 14 शिफ्ट होके न्यूमरेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर के. देन आफ्टर सामने क्या दिया हुआ है 1 बाय 120 ब्रैकेट y माइनस 980. ओके, दिस इज द इक्वेशन. ये इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिला. बट फाइनल आंसर इज नॉट in the equation form. Okay, we have to find out the quantity. y ढूंढना है बेटा हमको. हमें दिया हुआ है कि when x is equal to 70 rupees per liter, so put the value if x is equal to 70 rupees, 17 rupees, so that what is the value of y? So put down 17 minus 14 that means 3, 1 upon 120 y minus 980. क्लियर. चलो 120 मल्टीप्लाई 3. ओके, तो 120 मल्टीप्लाई 3, आंसर 360. 360 इज इक्वल टू y माइनस 980. 980 सामने आएगा तो 360 प्लस 980, आंसर 1340. 1340 लीटर अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मिल्क. ओके, अंडरस्टैंड वेरी वेल. बिल्कुल इजी सम बेटा, समझ में आ जाए ऐसा. अगेन बोथ सम आर सेम, 16 एंड 17. इन 16 रिलेशन इन फॉर्म ऑफ लेंथ एंड टेम्परेचर सेल्सियस. ओके, considering as a x1 y1 x2 y2, but convert into c1 l1 and c2 l2. Just only find out the equation and after completion of equation answer is done. But in 17 यही चीज हमको दोबारा रिपीट करके उसी तरह से मतलब दिखानी है. वही इक्वेशन तक तो हम पहुंच ही गए. ओके, बट ऐसा बोला है कि लास्ट में एक चेंज यहाँ पर भी कर सकते थे. if ऐसा बोला हो कि भाई लेंथ 136 है तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा. तो इन इक्वेशन 2 अननोन वेरिएबल. ओके, हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल है, एक की वैल्यू डालेंगे तो दूसरी अपने आप मिलेगी. यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है एक्स वाई अननोन है. अगर x इज इक्वल टू 17 रुपीज देन पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 17, तो वी गॉट इजीली y एंड फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क 1340 लीटर. ओके, टोटल 4 सम कंप्लीट टुडे, 14, 15, 16 एंड 17. ओके, 4 सम देखे हैं. 14 तो बिल्कुल सिंपल लाइन का इक्वेशन, हर एक में एक तो कंक्लूजन फिक्स है. इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट क्लू आपको दिए होंगे. 14 बिल्कुल सिंपल, हमारे पास एंगल था, स्लोप मिल गया, लाइन का इक्वेशन. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम पैरेलल लाइन. ओके, तो स्लोप इज इक्वल, m1 is equal to n2, slope done. Another point is given, so easily we got a equation of line. In 15, okay, from origin, one line start with origin and cut the another line at perpendicular with point -2, 9. Then line segment OP is perpendicular to line L.
Okay, if we have 2 point on line segment OP, so easily we got that the slope of OP. So slope of OP is equal to -9/2. Then line segment OP perpendicular to the line L. So relation between perpendicular line, so slope multiplication is equal to -1. In shortcut method, directly we got the slope of line L, then reciprocal of the slope 9/2, that means 2/9, and opposite sign तो माइनस, तो कंसीडरिंग एज अ प्लस. तो इन शॉर्टकट मेथड से बेटा हम सीधा स्लोप लिख सकते हैं. पॉइंट गिवन है -2/9, क्योंकि P है वो लाइन L के ऊपर भी है और OP के ऊपर भी है. पॉइंट रेडी, स्लोप रेडी, इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, 16, 17 तो बताया आपको. तो हर एक में कुछ ना कुछ नया है. बहुत ही कम सम बचे अभी, 18, 19, 20 तीन ही हैं. अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा और आगे इक्वेशन भी देखने हैं 10.3 के लिए, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज इतना अच्छे से क्लियर कर दो, देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.